Healthcare is a dynamic and ever-evolving field. New discoveries, innovative technologies, emerging diseases, and evolving medical treatment protocols has been continuously in development and has challenged us to expand our knowledge and refine our clinical skills. In such an environment, in such cases, CME is continuing medical education is not only an academic requirement, rather it is a professional responsibility for each and every one of us to upgrade ourselves as well as to give an excellent patient care. It has been rightly said that knowledge shared is knowledge multiplies. So today's CME provides a valuable platform for the healthcare professionals who are coming from different streams to come together and exchange experience and discuss the recent advances and explore evidence-based practices that can enhance the quality of healthcare and services delivered. So I am particularly delighted to witness the enthusiasm of the participants of the very different the spectrum of professionals in diverse specialties and from different areas. With this word, I once again extend a warm welcome to each one of our distinguished guests, our faculty members and delegates. I wish the program a very grand success and hope each participants, each and every one of us gains some insights, valuable insights, to have a good practical knowledge from today's proceedings. I think IVF takes the center stage. But then it's not always IVF that the patient requires. Even a carefully selected patient who has been diagnosed with infertility and advised for IUI with proper diligence, we can achieve success in IUI as well. So today my talk is on 10 pearls for successful IUI. So I'll begin with the first pearl. The first pearl is the patient selection criteria. So when a patient comes to us in the OPD, the very first moment when we take the history, we need to decide whether this patient falls into ovulation induction, IUI or IVF. And that's how the first step of a successful pearl is already taken. So in patient selection criteria, the most important part is the age of the patient, the wife's age. Various studies have shown that women under the age of 35 gives optimal results with IUI. Whereas as the age advances above 35, the success with IUI decreases. Again, duration of infertility. The shorter the duration of infertility, that is less than 5 years, the better the success. Next comes tubal patency. When we go for IUI, we do HSG test or other laparoscopic procedures. At least one patent tube increases the chances of a successful IUI. गुड इवनिंग पासीघाट वासियों को और ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन पार्ट की तरफ से हेल्थ केयर हॉस्पिटल पासीघाट की तरफ से सबको ये एक इन्फॉर्मेशन हम बताना चाह रहे हैं कि नाउ हेल्थ केयर हॉस्पिटल पासीघाट हैज़ ऑफिशियली पार्टनर विद बिरला फर्टिलिटी एंड IVF फैसिलिटीज़। ये एक IVF फैसिलिटीज़ है जो इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और एक एमिनेंट एक IVF सेंटर है, जिसके साथ पासीघाट में सुविधा देने के लिए हम लोग इनके साथ टाई-अप किया है। तो अभी तक हम लोग जितना भी हम लोग ने सर्विस दिया है तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। और बिरला का स्टाफ की तरफ से भी वो लोग जो आए हैं वो लोग भी बहुत सिंसियरिटी के वो शो किया है। तो ये सेंटर के बारे में थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं, अपना हेल्थ केयर हॉस्पिटल के बारे में बताना चाह रहा है कि एज ए IVF जब हम लोग IVF किया है, बेसिकली IVF एक तरह से जिनका बच्चा नहीं होता है वो लोग एक आर्टिफिशियली एक तरह से बच्चा पाने के लिए है, जो ट्रीटमेंट करने के लिए एक तरह से एक IVF सेंटर में जाना पड़ता है।
तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिन लोगों का बच्चा नहीं हो पाता तो उनको एक मदद मतलब एक एक्सटर्नली मदद करने के उसमें बेसिकली बहुत पैसा और बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है और मेंटली स्ट्रेसफुल होता है। तो ये खुशी की बात है कि हेल्थ केयर हॉस्पिटल अभी हम लोग पार्टनरशिप होने के वजह से अभी हम लोग L1 स्टेटस में हैं, जो हम लोग ऑफिशियली ये पोर्शन को हम लोग कैटर कर सकता है। जो लोग पहले दूर दराज जगह में जाता था, जैसे यहाँ से गुवाहाटी जाना पड़ता था, यहाँ से किसी को आउट ऑफ द स्टेट जाना पड़ता था, उसमें मेंटली और एक फिज़िकली इमोशनली और एक तरह से फाइनेंशियली एक बहुत बर्डन था। और वो अभी ऑफिशियली आपका पासीघाट में एज ए होम टाउन अभी हम लोग का यहाँ में आप ये फैसिलिटीज़ को आप ले सकता है। तो मैं सभी पासीघाट का वासियों और जो ये ईस्टर्न पोर्शन में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग IVF के लिए जो चाह रहे हैं, तो हम ये उन लोग को एक बताना चाह रहे हैं कि ये सर्विस अभी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है, तो आप इनका लाभ और इसका सर्विसेज आप उठा सकता है। थैंक यू। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर कल्पना जैन बिरला फर्टिलिटी एंड IVF गुवाहाटी में एक कंसल्टेंट हूँ और वहाँ की सेंटर हेड हूँ। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये आप लोगों को सबको बताते हुए कि बिरला फर्टिलिटी एंड IVF गुवाहाटी आज पासीघाट में हेल्थ केयर हॉस्पिटल से टाई अप ऑफिशियली कर चुकी है। ये टाई अप हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि IVF सिर्फ मेट्रो सिटीज़ या बड़े बड़े शहरों में सीमित नहीं होना चाहिए। ये वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम हर जगह जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स है और अरुणाचल जैसे जगह में जहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, हमें वहाँ पेनिट्रेट करना चाहिए और उन लोगों को भी ये सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए इतने दूर ट्रैवल करना गुवाहाटी तक या बाकी स्टेट्स में कोलकाता या दूसरे जगह जाकर करना फिनेंशियली इमोशनली एक बर्डन है। कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हेल्थ केयर हॉस्पिटल ऑलरेडी एक रिनाउंड हॉस्पिटल है पासीघाट का, तो क्यों ना इधर हम एक टाई अप करें ताकि जो बेसिक इवैल्यूएशन है, जिनको भी इनफर्टिलिटी की चिकित्सा करवानी है, उनका बेसिक टेस्ट हो गया, बेसिक सुविधाएं जो भी हैं या ट्रीटमेंट जो है वो यहीं पर हो, और जिनको एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, जिसकी डायग्नोसिस में IVF की ज़रूरत है, उनको भी ये सुविधा मिले ताकि वो पेशेंट्स हमारे पास सही तरीके से पहुंच पाए बिना देरी किए। तो ये टाई अप हमने इसलिए किया है। और अगर मैं बोलना चाहूँ बिरला फर्टिलिटी एंड IVF के बारे में, तो ये 150 इयर्स की एक लीगेसी है और अभी इन बिरला फर्टिलिटी एंड IVF के 50 से भी ज़्यादा सेंटर इंडिया में उपलब्ध है। तो गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक गेटवे माना जाता है और इसके लिए हमने ये टाई अप में यही कोशिश की है कि जितने पेशेंट को IVF की दरकार है उनकी बेसिक जांच यहीं पर हो जाए और उनको कुछ दिनों के लिए ही गुवाहाटी आना पड़े, तो उनका स्टे भी गुवाहाटी में कम हो जाएगा और बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएगी। हेल्थ केयर हॉस्पिटल एक L1 फीडर सेंटर की तरह एक काम कर रहा है यहाँ पर। तो जो बेसिक जांच है और बेसिक जो ट्रीटमेंट होती है जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन, IUI, ये सब यहीं पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। जो बेसिक अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट वगैरह या सीमेंट टेस्ट जो हम हस्बैंड्स का करते हैं, वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसे हम हर महीने यहाँ पर आते भी हैं, तो हमारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप ऑलरेडी कंसल्टेशन कर सकते हो। और डॉक्टर जेम्स मोदी और डॉक्टर के मेगू के सहायता से ये हमारा एक ऑफिशियल टाई अप स्टार्ट हुआ है। तो मैं पासीघाट निवासियों को अनुरोध करती हूँ कि जिनको भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको भी बच्चा नहीं हुआ है, इनफर्टिलिटी से फेस कर रहे हैं, वो ज़रूर से ज़रूर हमें विज़िट करें और हमारी सुविधाओं का उपयोग लें। Good evening, everyone. I'm Dr. James Modi. I'm a consultant gynecologist. Today, actually, we are. I feel delighted that at least in Pasighat itself, one big IVF chain, which is all over in India, it has already started its service. Dr. Kalpana Madam and all the Villar staff have been visiting our center for the last 2-3 months already, and they are doing a wonderful job. Why? Because fertility, as a practicing gynecologist, it has been seen that infertility अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है. Infertility is growing, and for this problem एक हम लोग का जो solution था, मिनिमम गुवाहाटी या तो डिब्रूगढ़ में एवरी डे का
जर्नी होता है, पेशेंट्स के लिए हार्डशिप होता है, फाइनेंशियल बर्डन एज वेल एज इकोनॉमिकल एंड जो इमोशनल बर्डन रहता है, वो चीज़ को पासीघाट इटसेल्फ में हम लोग ट्रीटमेंट करने की वजह से दैट इज़ टोटली बहुत कम, बहुत ज़्यादा बर्डन जो रिड्यूस हो गया है. तो फॉर देट आई एम वेरी डिलाइटेड एंड वेरी हैप्पी फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो, एंड आई एम वेरी happy to work with such Birla IVF team also. We have a lot of things to learn from them, a lot of things to know from them. That and हमारे एक इस बीच में हम लोग यहाँ पासीघाट में एक CME ऑर्गेनाइज किए हैं. तो ये CME में for this also we are very helpful, or we are very thankful and for to Birla IVF team and our specialist doctors from Guwahati, that they have come here and then they are doing the service as well as they are helping us in organizing the CME, and they are sharing their knowledge. हम लोग का knowledge हमारा पासीघाट ही नहीं, आसपास का जितना भी गायनिकोलॉजिस्ट है सबको नॉलेज को शेयर कर रहे हैं. दैट्स वाई मैं I thank the Birla Infertility team, Birla IVF team, and I wish all the very success to them as well as for the patients who will be undergoing treatment of infertility with Healthcare Hospital and with Birla IVF. Thank you.